দেশৰ ভিতৰতে সাহসী শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গ ফিল্মি হিৰো নাছিল। জুবিন আছিল ৰিয়েল লাইফৰ হিৰো। মোর কোনো জাতি নাই, মোর কোনো ধর্ম নাই, মোর কোনো ভগবান নাই। মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজঙ্ঘা। সঁচা কথা কবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। अभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, दे करप्टेड। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। সেয়া লাগিলে চৰকাৰে হওক অথবা সংগঠনে হওক, ক্ষমতা লোভী বহু চেলিব্ৰিটিয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কথাত উঠা বহা কৰে, কিন্তু ইয়াৰ শাৰীত নাছিল জুবিন গাৰ্গ, এক ব্যতিক্ৰমী আৰু সাহসী সত্তা জুবিন গাৰ্গ। ক্ষমতা আৰু টকাৰ কাৰণে প্ৰায় সংখ্যক চেলিব্ৰিটিয়েই মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কথাত উঠা বহা কৰে। কৃষকৰ মৃত্যুত টুইট নকৰা নামী দামী ক্ৰিকেটাৰ, চেলিব্ৰিটিৰ টুলগেটৰ দৰে লাইন লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত শুভেচ্ছা জনাবলৈ। কিন্তু জুবিন গাৰ্গ কেনেকুৱা নাছিল। নগণ্য সংখ্যক চেলিব্ৰিটিৰ মাজৰ এজন আছিল জুবিন, যিয়ে জনতাৰ সৈতে আছিল আৰু কেতিয়াও কোনো কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত মূৰ দোৱা নাছিল। অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সাহসিকতাক এতিয়া এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত তুলি ধৰিছে এগৰাকী সাহসী ইউটিউবাৰে। ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাঠিয়ে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'ই এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰততে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। জুবিন গাৰ্গৰ সাহসিকতাক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলোৱাৰ বিপৰীতে দেশৰ বহু নামী দামী তাৰকাৰো মুখত যেন এক প্ৰকাৰ চূণ সানিলে এইগৰাকী ইউটিউবাৰে। প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে কৈছে, এনেকুৱা এখন দেশ য'ত প্ৰায় সংখ্যক বলিউড চেলিব্ৰিটি ক্ষমতা আৰু টকাৰ গোলাম হৈ ৰয়, তেনে ক্ষেত্ৰত বহু কম তাৰকা চেলিব্ৰিটি ওলাই, যিয়ে ছিষ্টেমৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ সাহস কৰাই নহয়, ইয়াৰ বিদ্ৰোহো কৰে। জুবিন গাৰ্গ কেনেকুৱা সংগ্ৰামীৰ মাজৰে এজন। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। 19 ছেপ্টেম্বৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ সময়ৰ পৰা 23 ছেপ্টেম্বৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়লৈকে সৃষ্টি হোৱা অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতি বৰ্ণনা কৰি ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাঠিয়ে উল্লেখ কৰিছে, জুবিনৰ জনপ্ৰিয়তা কেৱল তেওঁৰ মিউজিকেল টেলেণ্ট নাছিল। এই জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণ জুবিন ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ বাবে জীয়াই আছিল। জুবিনে যদি কেতিয়াবা পথৰ দাঁতিতে কাম কৰা বনুৱাৰ সৈতে খাবলৈ বহিছিল, কেতিয়াবা আকৌ পাচলি বেপাৰী, ৰিক্সাৱালাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল। জনতাৰ সকলো বিপদৰ সময়ত তেওঁ থিয় দিছিল। তেওঁৰ ষ্টুডিঅ'ৰ সন্মুখত সদায় সহায় বিচাৰি অহা মানুহৰ লাইন লাগিছিল আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও খালী হাতেৰে উভতি যাব লগা হোৱা নাছিল। বিয়া, সকাম, চিকিৎসা, মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আদি যিয়ে যেনেদৰে সহায় বিচাৰিছিল, সকলোতে সহায় কৰিছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে। जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबीन से रिलेटेड एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबीन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए इन्होंने खूब डोनेट किया और इन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद करी। हर रोज लोग इनके स्टूडियो के बाहर और घर मदद की उम्मीद लिए आते और कभी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की।
বানপানীৰ সময়ত নিজে বান সাহায্য বিতৰণ কৰিছিল ভিডিঅ'টোত কোভিডৰ পেণ্ডেমিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুবিন গাৰ্গে অনাথ শিশুৰ দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰসংগও উল্লেখ কৰিছে ইউটিউবাৰ ৰাঠিয়ে इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते, लोगों से कपड़े, मेडिसिन और फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को देते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जुबीन ने 15 अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी अडॉप्ट किया हुआ था। इनमें से एक बच्ची थी काजली। एक दिन जुबीन काम से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काजली को देखा। वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी, जहां उसे लगातार अब्यूज किया जा रहा था। तो जुबीन से देखा नहीं गया और उन्होंने न केवल काजली को रेस्क्यू किया बल्कि उसे अडॉप्ट करके कोर्ट में लीगल बैटल भी लड़ा और जीते। अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने और हर मुसीबत के समय अपने लोगों के साथ खड़े होने के कारण जुबीन लोगों के रियल लाइफ हीरो बन गए। অন্যহাতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ প্ৰতাৰণা আৰু মিউজিকেল কোম্পানীসমূহে কৰা শোষণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় অসমীয়া হিন্দীৰ উপৰিও বেংগলী মালায়ালম তেলেগু তামিল নেপালী ভোজপুৰী আদি 40টা ভাষাত 38,000 গীত গাই ৰেকৰ্ড গঢ়িছিল জুবিনে 12টাকৈ বাদ্যযন্ত্ৰ সংগত কৰিব পাৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁ ইয়াৰ মূল্য নাপালে মিউজিক কোম্পানীয়ে তেওঁক বহুত শোষণ কৰিছে कुल मिलाकर इन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। आसामीज और हिंदी के अलावा यहाँ पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली और नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट हर एक भाषा शामिल थी। ये 12 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकते थे, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इतने टैलेंट के बावजूद, इतने सारे अलग अलग गाने रिकॉर्ड करने के बावजूद इन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने रिवील किया कि इनके 38,000 रिकॉर्डेड गानों के राइट्स प्रोडक्शन हाउसेज और म्यूजिक कंपनीज के पास थे और जुबीन को सिर्फ 1 टाइम रिकॉर्डिंग फीस मिली थी। म्यूजिक कंपनीज ने इन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया। যি সময়ত দেশৰ তাৰকা শিল্পীয়ে চৰকাৰৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি তৈলমৰ্দনত ব্যস্ত সেই সময়ত জুবিন গাৰ্গে চৰকাৰৰ জনবিৰোধী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল लेकिन ये सिर्फ कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, जुबीन एक बागी भी थे, एक रेबल जो पावर में रहने वालों से हमेशा सवाल करते, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस। आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a fighter. I'm always a fighter. I'm not a politician. I'm a fighter. रेबल किससे? I've learned it from Che Guevara. ये एक आजाद पंछी की तरह हमेशा वही बोलते थे जो इनके मन में होता था, किसी से नहीं डरते थे, किसी भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन का विरोध करने से पीछे नहीं हटते और उन्हें सीधा चैलेंज करते थे। उन्होंने पब्लिकली बोला था कि असम के सारे मिनिस्टर्स और लीडर्स करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। अभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, दे करप्टेड। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। ভিডিঅ'টোত অনুপম খেৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ সুৰেশ ৰাইনা সাইনা নেহৱাল অক্ষয় কুমাৰ কৰণ জোহৰ আলিয়া ভট্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু নামী দামী তাৰকাৰ নাম লৈছে ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে য'ত ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে সকলোকে তৈলমৰ্দনকাৰী সুবিধাবাদী ৰূপে আখ্যা দিছে इस सबसे आपको पता चल जाना चाहिए दोस्तों कि जब एक सेलिब्रिटी अपनी आवाज उठाता है उससे कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सेलिब्रिटीज हमेशा पावर के साथ खड़े रहते हैं, कभी भी लोगों के साथ नहीं। आपको किसान आंदोलन में याद होगा कैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बाकी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हैशटैग चलाया था किसानों के अगेंस्ट। इन सेलिब्रिटीज ने कभी लोगों के इश्यूज पर, किसानों की मौत पर कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन सरकार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहे। हाल ही में तो हालत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर भी सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स लाइन में लग जाते हैं एक टूल किट की तरह उन्हें बर्थडे विश करने के लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Wishing you a very happy birthday. आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कभी इन्हें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, E20 पेट्रोल पर बोलने के लिए बोल दो, लद्दाख प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, इनका मुंह बिल्कुल चुप रहता है। जुबीन ऐसे नहीं थे। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुके। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে কাবলবত গুৱাহাটীত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত চৰকাৰে গছ কটা প্ৰসংগত জুবিন গাৰ্গে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পালন কৰা খৰব ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যি সময়ত অসমৰ ৰাইজে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেই সময়তো জুবিনে নিজৰ দায়িত্ববোধৰ পৰা আঁতৰি অহা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰে ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে এতিয়া এনেদৰে জুবিনৰ সাহসিকতাক ভাৰতবাসীৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰে
ভিডিঅ'টোত ইউটিউবাৰ ৰাঠিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সাংগীতিক যাত্ৰাৰ পৰা দুৰ্গতজনৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা সহায় এই সকলোবোৰ বিষয় সামৰি লৈছে জুবিনৰ জনপ্ৰিয়তা কেৱল তেওঁৰ মিউজিকেল টেলেণ্ট নাছিল এই জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণ জুবিনৰ সাহস জুবিন ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ বাবে জীয়াই আছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ডেইলি আসাম ডিজিটেল